Hello everyone, good afternoon to all. Let me know in the chat box whether my voice is clear or not, and also my screen is visible clearly or not. If you are facing any issues, you can check it right now. Everything good? Very good afternoon, Kuldeep. Yes, everything is okay. Huh? So let's start. So this is the second lecture of sequential series. Huh? We are continuing with arithmetic progression. After completion of arithmetic progression, we will go through geometric progression and also harmonic progression, all these things. So in today's class, what we'll do, we'll solve some questions, some results we'll discuss of on arithmetic progression, and also we'll see some properties of arithmetic progression. So in the previous class, I gave you one homework. How many of you tried those two questions? How many of you tried this question and got the answer? Can you write the answer in the chat box, everyone? Who got the answer, please write in the chat box. Yes, Kuldeep, Sargam, Savita, yeah, Krishna. Anyone got the answer of this question? Okay, ठीक है. So let's discuss the solution of this question. क्या दिया है इसमें? The Sn denote the sum of first n terms of an AP. अच्छा, तो मेरे पास एक AP है जिसका n टर्म की सम जो है ना, that is Sn. And it is also given that if Sn S2n is equal to S3 3 into Sn, that means S2n means sum of 2n number of terms of an AP is equal to 3 times of Sn. Okay, then you need to find the ratios of S3n is to Sn. S3n upon Sn को तुम्हें फाइंड आउट करना है. ठीक है, चलो. तो मुझे गिवन क्या है? मुझे गिवन है S2n इज इक्वल टू 3Sn. तो हिंट्स ये तुम्हारे लिए है. क्वेश्चन में क्या करना चाहिए मुझे ना, S2n को फाइंड आउट करो, Sn को फाइंड आउट करो. वेयर in the given AP the first term is A and the common difference is D. Let's write. अच्छा, तो फर्स्ट इफ आई ट्राई टू फाइंड S2n, तो S2n क्या हो जाएगा? n upon 2, that is 2n upon 2 into n upon 2 into 2A प्लस n माइनस n क्या है यहाँ पे? 2n 1 minus 1 into D है ना. तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्या? S2n. सिमिलरली 3Sn को फाइंड आउट करो. Sn की फॉर्मूला लगा दो बस. 3 into n by 2 2A प्लस n माइनस 1 into D है ना. तो ये दोनों साइड से अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे, देखो यहां से n by 2 को कैंसिल कर देते हैं. ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? और ये 2 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा ना, 4A प्लस ये क्या हो जाएगा ना, 2D. और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2D 2n, तो कितना हो जाएगा? 4ND. और यहां से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस 2D. ठीक है, और राइट हैंड साइड में क्या बनना है ना, 6 है प्लस 3ND माइनस 3D. तो सिंप्लीफाई करो, क्या मिल रहा है तुम्हें यहां से? देखो, अच्छा 6 है माइनस 4 है 2A, और यहां से -ND, और ये -3D प्लस 2D, तो कितना हो जाएगा? -D इज इक्वल टू 0 बन रहा है कि नहीं? तो मुझे यहां से मिल रहा है क्या? 2A माइनस D is equal to I am getting ND. Okay, so I got here 2A minus D is equal to ND. ओके, चलो यहां से तो मुझे कुछ डी के बारे में आइडिया आया. चलो, सो लेट्स फाइंड नाउ S3n अपॉन Sn. सो S3n क्या हो जाएगा? 3n अपॉन 2 इंटू 2A प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी. इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और कुछ नहीं है इसमें. n/2 इंटू क्या दिया है? 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी. इसको अगर हम फिर से ओपन कर देते हैं तो मुझे क्या मिलेगा एक्चुअली? देखो, 2 को अगर मल्टीप्लाई 1/2 को अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं, और n/2 को मल्टीप्लाई n/2 को दोनों से कैंसिल कर दो ना.
ऊपर और नीचे से n/2 को कैंसिल कर देते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे को क्या मिलेगा, देखो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, क्यों मैं ऐसे क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मेरे पास 2a माइनस डी का वैल्यू मुझे पता है, दैट इज एनडी, राइट। अगर ये एनडी है तो मैं क्या कर सकता हूं यहां से ना, 2a अगर मैं करूं ऐसे 2a माइनस डी और प्लस 3nd ऐसे कर सकते हैं हम, हाँ कि ये सर नो। सिमिलरली यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, 2a माइनस डी और प्लस एनडी ऐसे कर सकते हैं कि नहीं, आराम से कर सकते हैं, ठीक है। Just use the value of 2a minus, ठीक है, लेंगे Just wait for another 1 or 2 minutes. I'm facing some network issues. Suddenly it happened. Just wait for another one. I'm checking it actually, guys. Just wait. Network is available, but it is not coming. Why it is happening?
Yeah, it's starting. Don't worry, it is starting. Now it is okay. Now it is okay. Just a minute. ठीक है, क्लियर अभी? ओके, सॉरी सॉरी, एक्चुअली सडनली नेटवर्क हैज गॉन, ये नेटवर्क है, कुछ प्रॉब्लम है शायद, आई डोंट, ठीक है, सॉरी फॉर दैट. Okay, thank you for your patience, all of you. Okay, let's start. Is my screen visible to all? Guys, yes, it is visible now. Voice is clear now? Voice is clear now? Okay, done, done. ठीक है, ठीक है. Thank you. Okay, so first question is clear to all of you? Is the first question is clear? Shall I discuss the question again? Yeah, it is clear. Let me know in the chat box, guys. या और एक बार बता देता हूं तुम लोगों को, क्वेश्चन में क्या पूछा है. ये दिया है कि Sn जो है दैट इज द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, है ना. एंड क्वेश्चन में और ये भी गिवन है S2n इज इक्वल टू 3Sn. दैट मींस सम ऑफ फर्स्ट 2n टर्म्स is equal to thrice of sum of n terms, right? It is given, both are equal, and it is asked, it is asked in the question to find the ratio of S3n is to Sn. So which information is given to us, by using that information only we can solve this question. So here it is given S2n is equal to thrice of Sn, right? So find S2n where n is equal to 2n. So by using the summation formula for arithmetic progression, we can write the both the sums of S2n and 3 into Sn, then simplify, and I am getting 2a minus d is equal to nd. So by using this result, ये जो रिजल्ट है ना 2a माइनस डी इज इक्वल टू एन डी, ये रिजल्ट को यूज करके हम यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. देखो S3n Sn, S3n अपन Sn है मेरे पास. सो S3n का के लिए फाइंड फॉर्मूला यूज करो, दैट इज 3n अपन 2 इंटू 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी. एंड Sn का फॉर्मूला यूज करेंगे तो दिस इज n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट, व्हिच इज इक्वल टू 3 इंटू 2a माइनस डी. अच्छा, n by 2 को दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से कैंसिल कर दिया, तो न्यूमरेटर becomes thrice of 2a minus d plus 3nd, right? So this becomes now what is happening, 2a minus d plus 3nd, और नीचे क्या हो रहा है 2a minus d plus nd, right? तो मुझे क्या मिल क्या रहा है ना, यहाँ से तो दोनों को कैंसिल भी कर सकते हैं यार आराम से, ये तो कैंसिल हो जाएगा, है ना. तो नहीं कैंसिल तो नहीं हो पाएगा ना, तो हाँ 3nd है ऊपर, कैंसिल नहीं हो रहा है. सो 3 इंटू nd प्लस 3nd, तो 2a माइनस डी कितना मिला था मुझे लास्ट में, कितना मिला था, nd मिला था. सो यूज 2a माइनस डी इज इक्वल टू nd. सो nd प्लस 3nd कितना हो जाएगा 4nd, और नीचे क्या है nd प्लस nd दैट इज 2nd. सो nd कैंसिल हो गया, 2 से 4 कैंसिल हो गया, तो मेरे को मिला कितना है ना 6:1. दिस इज योर करेक्ट आंसर, राइट एवरीवन, क्लियर. ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर. If the sum of first n term of two APs are in the ratio 3n plus 8 is to 7n plus 15, then the ratio of their 12th term is. अच्छा, दो एपी मुझे दिया हुआ है, दो एपी दिया है. फर्स्ट एपी जो है दैट इज गिवन आज, सपोज आई एम टेकिंग फर्स्ट एपी का जो फर्स्ट टर्म है दैट इज a1, एंड जो कॉमन डिफरेंस है दैट इज d1, एंड और क्या दिया है, सपोज द सम ऑफ द फर्स्ट एपी इज Sn1, ठीक है. सिमिलरली सेकेंड एपी को अगर हम कंसीडर करेंगे, सपोज द फर्स्ट टर्म ऑफ दिस सेकेंड एपी इज a2, कॉमन डिफरेंस इज d2, एंड जो सम है सेकेंड एपी की दैट इज Sn2, ठीक है, ये दिया हुआ है. सो इट इज गिवन दैट कि Sn1 अपन Sn2 ये कितना दिया है मुझे गिवन. अच्छा, फॉर्मूला यूज तो पहले कर लेते हैं. Sn का फॉर्मूला मुझे पता है, n के जगह में n1 को पुट करेंगे दैट इज n1 बाई 2 2a प्लस n1 माइनस 1 इंटू d1 डिवाइडेड बाई
एन टू अपन टू, है ना, एन सॉरी यहाँ पे एन वन को यूज नहीं करेंगे हम, क्योंकि एन टर्म्स होते हैं ना, है ना, एन वन क्यों यूज करेंगे फिर, दिस, ओके, सो दिस इज नाउ एन बाई टू, ये भी क्या हो जाएगा एन बाई टू, एंड दिस इज ए टू प्लस एन माइनस वन इंटू डी टू, राइट, ये हो गया, ठीक है। सो दोनों से मैं एन बाई टू को कैंसिल कर दिया, तो ये कितना गिवन है मेरे को, दैट इज 3n प्लस 8 अपन 7n प्लस 15, ठीक है, ये गिवन है मेरे को, ओके। सपोज दिस इज इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 दे दिया मैं, और ये पूछा क्या है ना, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 12th टर्म, मतलब फर्स्ट एपी की 12th टर्म एंड सेकेंड एपी की 12th टर्म की रेशियो मुझे पता करना है, दैट इज आई नीड टू फाइंड T12th ऑफ फर्स्ट एपी अपन T12th ऑफ सेकेंड एपी। तो फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा ना, A1 प्लस 11D1 अपन A2 प्लस 11D2, ठीक है, ये यूज कर सकते हैं हम, है कि नहीं। अच्छा, ये जो 11 है, ये 11 को हम कैसे कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, ये बताओ मुझे। अच्छा, ये जो 11 है, A1 प्लस 11D1 अपन A2 प्लस 11D2 है मेरे पास, राइट। तो ये क्या है एक्चुअली, है ना, तो ये जो यहां पे जो गिवन है ना मुझे, 2A1 प्लस n माइनस वन इंटू D1, एंड यहाँ पे क्या है मेरे पास, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, कैसे लिख सकते हैं, 2A1 11 को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो किसके साथ हम कंपेयर, इक्वेशन 1 को अगर हम यूज करेंगे तो मेरे पास क्या है ना, 2A1 प्लस n माइनस वन इंटू डी है, 2A1 प्लस n माइनस वन इंटू डी है, D1 अपन 2A2 प्लस n माइनस वन इंटू D2 is equal to, it is given as 3n plus 8 अपन 7n plus 15 दिया है ना। हम उसको और कैसे लिख सकते हैं, ये बताओ, हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, अगर हम उसको n माइनस वन अपन टू को A1 प्लस n माइनस वन अपन टू इंटू D1 डिवाइडेड बाय A2 प्लस n माइनस वन अपन टू बाई D2, ऐसे कर सकते हैं हम, ये सुनो, 3n प्लस 8 अपन 7n प्लस 15, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, ये बताओ, यूजिंग इक्वेशन 1, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, ये बताओ मुझे। अरे 2A1 प्लस n माइनस वन D1, ये मुझे पता था, यहां से इक्वेशन 1 से मैं ले लिया उसको, यहां पे लिखा उसको, तो मैं उसको सजा के थोड़ा लिख दिया, कैसे ना, 2A1 को मैं ऐसे लिखा A1 प्लस n माइनस वन इंटू अपन डी, सॉरी अपन 2 इंटू D1, यहां से देखो ना, एलसीएम ले लोगे, न्यूमरेटर में अगर एलसीएम ले लोगे और डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लोगे तो 2 दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से कैंसिल होके यही एक्सप्रेशन देने वाला है तुम्हें, समझ में आ रहा है कि नहीं, ये सुनो, है कि नहीं, ये बताओ। अच्छा, तो ये अगर हो रहा है, क्या इन दोनों टर्म्स को इसके साथ हम कंपेयर कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो 11 है, ये 11 जो है दैट इज n माइनस वन इंटू एन माइनस वन बाई टू हो सकता है कि नहीं, है कि नहीं, ये बताओ, क्या दिया है क्वेश्चन देख लो, ये दिया है कि इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ टू एपीज आर इन द रेशियो, जस्ट अ मिनट, है ना, रेशियो में कितना दिया है मुझे, हाँ, है ना, ये दिया है, देन द रेशियो ऑफ देयर 12th टर्म, अच्छा ये फाइंड आउट किए हम, A1 प्लस 11D1 अपन A2 प्लस 11D2, ठीक है, तो ये कितना हो रहा है, अगर मैं इक्वेशन 1 को यूज करूंगा यहाँ पे, A1 प्लस n माइनस वन अपन 2D1 अपन A2 प्लस n माइनस वन अपन D2, मुझे कितना मिला ना, ये गिवन है मुझे 3n प्लस 8 अपन
7n+15। तो इन दोनों को अगर हम कंपेयर करेंगे, यहां से मुझे क्या मिल रहा है ना, a1+11d1 कितना हो जाएगा, कंपेयर करेंगे तो सॉरी, यहां से क्या हो जाएगा ना, 11 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, n-1/2। तो n-1 हो जाएगा 22 एंड n हो जाएगा तुम्हारा 23। तो अगर n 23 हो रहा है तो आराम से तुम a1+11d1/a2+11d2 को फाइंड कर लो। तो ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू एन कितना है 23+8/7 इंटू 23+15। तो इसको सॉल्व करेंगे तो मुझे को मिलेगा, दैट इज द आंसर विल बी 7/16 विल बी द आंसर। ठीक है, 7/16 विल बी द आंसर। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन गाइस। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग दैट वी नीड टू, एक्चुअली टाइम हो चुका है थोड़ा, तो फास्ट जाना पड़ेगा थोड़ा, देखो। अच्छा, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स आज ही फिनिश करना पड़ेगा एपी को, नहीं तो फिर टाइम लग जाएगा, है ना। सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। अच्छा, ये तो सिंपल है ना, ये कर सकते हो तुम, 1 2 3 4 अप टू ये दिया है, एन नेचुरल नंबर्स दिया है। तो ये पूछ रहा है, ये क्या है, ये एपी में है, तो एसएन पूछ रहा है, तो एसएन क्या हो जाएगा, तो n/2 इंटू 2 × 1 2a, है ना, 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, डी कितना है, यहाँ पे डी कितना है, डी इज 1, राइट। तो ये कितना हो गया ना, n/2, ये हो गया कितना, 2 प्लस n-1, ठीक है ना। तो मेरे को मिल क्या रहा है ना, n इंटू n+1/2। सो एसएन आई एम गेटिंग हियर n इंटू n+1/2। ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, राइट। क्लियर एवरीवन, ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। ये सिंपल थिंग था, ये सबको पता भी है, राइट। चलो, अच्छा ये क्वेश्चन करके मुझे बताओ, इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। जस्ट मिनट, 1 मिनट मुझे दो, लाइट अप डाउन हो रहा है क्यों, पता नहीं आज क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करो, टेक 2 मिनट्स फॉर दिस क्वेश्चन एंड सॉल्व इट। ये क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ मुझे क्या हो जाएगा। यस, अच्छा ये क्वेश्चन को कैसे करेंगे ना, इफ द नेचुरल नंबर्स आर रिटेन एज सोन। क्वेश्चन में क्या पूछा है देखो, अगर नेचुरल नंबर्स को इस टाइप से हम लिखेंगे, देन द सम ऑफ द टर्म्स इफ द nth रो इज, अच्छा बोल रहा है कि देन द सम ऑफ द टर्म्स इफ द nth रो इज, क्या होना चाहिए, nth रो क्या हो जाएगा, nth रो का सम क्या हो जाएगा, वो फाइंड आउट करना है मुझे। देखो, तो ये क्या दिया है मुझे, ये जो किस टाइप से वो लिखा है, फर्स्ट तो जो ट्राइंगल शेप में लिखा है 1 देन 2 3 देन 4 5 6 देन 7 8 9 10, देन क्या हो जाएगा, वी कैन राइट 11 12 13 14 15, है ना, ऐसे लिख सकते हैं हम, इसके बाद भी और आ जाएगा। ऐसे ही अगर ये क्या है, ये फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है, और ऐसे ही अगर हम nth रो तक पहुंचेंगे, ठीक है, वो पूछ रहा है द सम ऑफ द टर्म्स इफ द nth रो इज, क्या होना चाहिए सम। ठीक है, nth रो अगर इस टाइप से, अगर मैं nth रो को फाइंड आउट करूं तो मेरे को सम कितना मिलेगा। देखो, फास्ट मेथड जो है, दो मेथड है, एक तो शॉर्टकट है, शॉर्टकट क्या है ना, अगर देखो व्हेन n इज इक्वल टू 1, इफ आई पुट n इज इक्वल टू 1, अगर n 1 पुट करूंगा तो मुझे फर्स्ट रो में जितने एलिमेंट्स है उसका सम चाहिए मुझे, तो n पुट करेंगे तो 1 कहां मिल रहा है, देखो
विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस गिव्स यू 1। यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 0 हो रहा है, यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो नहीं हो रहा है। देखो थर्ड ऑप्शन पे अगर मैं 1 पुट करूं तो ये 1 बन रहा है, ठीक है, दैट इज n इंटू एन स्क्वायर प्लस 1/2, ठीक है। अच्छा ये हो रहा है, ठीक है, ये हो रहा है, ओके। ओके, ठीक है। अगर मैं ऐसे करूं, एन इज इक्वल टू, और भी एक कॉन्फिडेंट के लिए और भी चेक कर सकते हैं, अगर एन इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो कितना दे रहा है, ये देखो 2 पुट करेंगे तो कितना मेरा, एन इज इक्वल टू 1 पे 1 मिल रहा है। 2 पुट करेंगे इसमें, अगर एन इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो ये हो रहा है क्या आंसर, 2 पुट करेंगे तो कितना हो रहा है, 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 1, सो 5 इंटू 2 अपॉन 2 कितना हो रहा है, 5 हो रहा है। देखो इन दोनों की सम कितना है ना, 5 है। तो आई कैन से बाई चेकिंग द ऑप्शंस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ये हो सकता है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो सकता है ना, मोस्ट प्रोबेबली दिस इज द आंसर। बाकी तुम्हें 1 2 3 तक चेक करना चाहिए ताकि तुम्हें कॉन्फिडेंट आ जाए, क्योंकि ये भी तो हो सकता है, और भी तो एक्सप्रेशन हो सकते हैं जिसका जिसमें 1 पुट करेंगे तो 1 भी दे सकता है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो n स्क्वायर प्लस कुछ भी ले लो, मतलब हाँ, और भी कितने सारे एक्सप्रेशन हो सकते हैं जिसका n इज इक्वल टू 1 पुट करने से भी 1 मिलेगा तुम्हें, ठीक है, ओके। चलो इसके बारे में तो देख लिए। फिर ये इस टाइप से अगर तुम मेथड जो ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड के हिसाब से तुम यूज करके उसका आंसर तुम एग्जाम में कर सकते हो। बाकी 2 3 तक मुझे तुम्हें चेक करना चाहिए। तो मेथड टू एक्चुअली जो जनरलाइज्ड मेथड है ना, जो एक्चुअली रियल मेथड है, वो मेथड में हम कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा मुझे ये बताओ, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट रो में कितने एलिमेंट्स है, 1, और सम क्या है ना, 1 है। सेकेंड रो में कितने एलिमेंट्स में, 2 है, 3 है। तो कितने एलिमेंट्स यहाँ पे, फर्स्ट 1 एलिमेंट, इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, सेकेंड रो में 2 एलिमेंट्स हैं। सो ये कितना हो रहा है, 1 प्लस 2 कितना हो रहा है, 3। सो जो सेकेंड रो की, अभी तक सेकेंड रो तक कितना एलिमेंट्स कंज्यूम हो चुके हैं ना, 3 एलिमेंट कंज्यूम हो चुके हैं। दैट्स व्हाई इट इज एंडिंग विथ 3, ठीक है। सिमिलरली तो थर्ड रो इज स्टार्टिंग विथ आफ्टर 3, मतलब स्टार्टिंग विथ 4। सिमिलरली यू कैन चेक फॉर थर्ड रो में कितने एलिमेंट्स हैं ना, 3 एलिमेंट्स हैं। अगर 3 एलिमेंट्स में अभी तक कितने एलिमेंट्स कंज्यूम हो चुके हैं, थर्ड एलिमेंट तक, थर्ड रो तक ना, 6 एलिमेंट्स कंज्यूम हो चुके हैं। अगर 6 एलिमेंट्स कंज्यूम हो चुके हैं तो फोर्थ रो से 7 से स्टार्ट होगा, क्योंकि 7 6 के बाद 7 7 पे स्टार्ट होगा। सिमिलरली फोर्थ रो में कितने एलिमेंट्स हैं ना, 4 एलिमेंट्स हैं। तो फोर्थ रो तक कितने एलिमेंट्स कंज्यूम हो चुके हैं ना, 4 प्लस 3 7 प्लस 2 9 प्लस 1 10 एलिमेंट्स। तो it is ending with 10, but it is the next row is starting with 11। सिमिलरली मुझे ये पता है कि जो nth रो होगा, जो nth रो होगा, है ना, जो nth रो होगा उससे पहले जो, ठीक है ना, जो देखो जैसे देखो यहाँ पे देखो, मतलब nth रो में जो लास्ट एलिमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, वो n ही होगा ना, ठीक है। अच्छा अगर ये n हो सकता है ना, सो हाउ मेनी एलिमेंट्स, अच्छा फर्स्ट रो में 1 एलिमेंट, सेकंड रो में 2 एलिमेंट्स, थर्ड रो में 3 एलिमेंट्स, फोर्थ रो में 4 एलिमेंट्स, फिफ्थ रो में 5 एलिमेंट्स। सो ये मुझे बताओ, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन nth रो कितने हो जाएंगे ना, n हो जाएंगे, है कि नहीं। अच्छा ये बताओ, ये सारे एक एपी, ये सारे जो रो में जितने सारे एलिमेंट्स हैं, ये सारे क्या रिप्रेजेंट, किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक एपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसका कॉमन डिफरेंस क्या है। सो nth रो की कॉमन डिफरेंस भी वही सेम आ जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा ना, 1 हो जाएगा। अच्छा मुझे n पता है, जो nth रो की, मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, लेकिन मुझे फर्स्ट एलिमेंट ऑफ nth रो ये नहीं पता है। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ nth रो ये नहीं पता है मुझे,
तो ये मुझे फाइंड आउट करना है। अगर ये मिल गया तो मैं आराम से सम को फाइंड आउट कर सकता हूँ। अच्छा, जैसे कि जो कॉन्सेप्ट अभी अभी हम डिस्कस किए थे कि अगर मैं फोर्थ रो के बारे में बात कर रहा हूं, तो फोर्थ रो इज स्टार्टिंग विथ 7, है ना। सो बिफोर फोर्थ रो अप टू थर्ड रो 6 एलिमेंट्स आर कंज्यूम्ड बिफोर सेवेंथ रो, सॉरी फोर्थ रो। इज दैट क्लियर, है ना। सो nth रो की जो मतलब जो लास्ट nth रो की जो बिफोर मतलब प्रीवियस रो होगा, उसका जो लास्ट एलिमेंट होगा, तो मतलब ये मैं पूछ सकता हूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन, और सॉरी मैं ये ऐसे बोल सकता हूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स यूज्ड, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स यूज्ड अप टू n-1 थ्रू कितना हो जाएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स यूज्ड अप टू n-1 थ्रू कितना हो जाएगा। देखो, फर्स्ट रो में 1 हो रहा है, सेकेंड रो में 2 एलिमेंट्स हैं, थर्ड रो तक 6 एलिमेंट प्रेजेंट, थर्ड रो तक कितना हो रहा है, 1 + 2 + 3 हो रहा है। तो n-1 रो के लिए कितना हो जाएगा, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 अप टू n-1। देखो क्यों हो रहा है ये, देखो फोर्थ रो तक कितने एलिमेंट्स कंज्यूम हो चुके हैं ना, 1 + 2 + 3 + 4, सॉरी +3 तक, मतलब प्रीवियस रो के लास्ट एलिमेंट तक जितने हैं वो सारे को ऐड करना है मुझे, है ना। तो n-1 रो की नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर मैं पूछ रहा हूं, तो उसका जो प्रीवियस रो तक जितने एलिमेंट्स कंज्यूम हो चुके हैं, दैट इज 1 + 2 + 3 + 4 अप टू n-1 थ्रू। समझ में आ रहा है सबको। तो ये हो जाएगा, ये क्या है, एक एपी है, तो इसका सॉम क्या हो जाएगा ना, n-1/2 2a प्लस, ये कितना हो जाएगा, 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये हो जाएगा। समझ में आ रहा है सबको। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे को क्या मिलेगा ना, n-1/2, तो ये कितना हो जाएगा, 2 प्लस n-2, तो ये हो रहा है कितना ना, n इंटू n-1, दैट इज n² - n/2, ये हो रहा है n² - n/2 एलिमेंट्स यूज्ड टिल n-1 थ्रू, और ये टिल लिख दो अच्छा लगेगा, ठीक है। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स यूज्ड टिल n-1 थ्रू इज n² - n/2। अच्छा, अगर मैं ये मुझे पता चल गया कि n-1 रो तक n² - n/2 एलिमेंट्स यूज हो चुके हैं, तो nth रो की फर्स्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा, तो द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ nth रो कितना हो जाएगा, दैट इज n² - n/2 + 1 हो जाएगा, क्योंकि देखो फोर्थ एलिमेंट तक कितने एलिमेंट्स कंज्यूम हो चुके थे ना, 10 एलिमेंट कंज्यूम हो चुके थे। तो फिफ्थ रो इज स्टार्टिंग विथ 10 + 1। सो अगर मैं ये बोल रहा हूं कि और टिल n-1 रो कितने एलिमेंट्स कंज्यूम हो चुके हैं, दैट इज n² - n/2। सो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ nth रो क्या हो जाएगा ना, दैट इज n² - n/2 + 1 हो जाएगा, सिंपल। क्लियर एवरीवन। अच्छा, चलो यहां तक अगर समझ में आ गया, तो फर्स्ट एलिमेंट मुझे पता चल गया। व्हाट इज द फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा n² - n + 2/2। This is the first element of nth row, and which common difference is 1, and number of elements present in the nth row is n. Now we can find easily, क्या निकाल सकते हैं हम ना, sum of nth row को हम find out कर सकते हैं, that is n/2, है ना, number of elements by 2 into 2 into 1 plus n-1 into d is 1, ये हो गया, ठीक है। तो सॉरी सॉरी सॉरी, फर्स्ट एलिमेंट क्या है, nth रो की फर्स्ट एलिमेंट क्या है यहाँ पे, 2 इंटू n² - n - 2/2, ये है ना, या प्लस
हाँ +2/2, 2a+n-1 है ना, n-1 इंटू d is 1, ये हो गया सम। तो इसको फाइंड आउट करना है और कुछ नहीं, सिंप्लीफाई करो जो भी मिलेगा तुम्हें। देखो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे को कितना मिलेगा, n/2 n² -n+2 +n-1, तो ये हो जाएगा n/2 और n तो कैंसिल हो गया, तो 2 माइनस, तो n² -1 है ना, तो n इंटू n² -1/2, ठीक है, n इंटू n² +1 ना, या n इंटू n² +1 इज द, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। क्लियर एवरीवन, आया समझ में सबको? बोलो चैट बॉक्स में बताओ ये अगर समझ में आ गया सबको तो। या प्रीति, सरगम, दिलीप, कृष्णा, अभय, इज दैट क्लियर टू ऑल? गिव मी अ थम्स अप इफ इट इज क्लियर टू ऑल गाइस। ओके, ठीक है, दैट्स, थैंक यू, थैंक यू। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आज क्वेश्चन नहीं है, अच्छा यहाँ पे पूछा है कि फाइंड सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल और नेचुरल नंबर, एन और नेचुरल नंबर्स, है ना, तो ये इजीली तुम फाइंड आउट कर सकते हो ना, क्या है इसमें फर्स्ट, अच्छा ये हो जाएगा क्या, 1 + 3 + 5 + 7 अप टू एन टर्म क्या हो जाएगा, फाइंड आउट करना है तुम्हें ये। तो ए हो गया 1, डी हो गया कितना 2, डी हो गया 2, एन इज इक्वल टू एन, है ना। सो दिस इज द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द फर्स्ट एन और नेचुरल नंबर्स, राइट। तो सम कितना हो जाएगा, सम विल बी n/2, देखो ये याद रखो, एक रिजल्ट है उसको याद रखो, n/2, 2 इंटू ए दैट इज 1 प्लस n-1 इंटू डी इज 2, ये हो जाएगा। सो n/2, 2 प्लस 2n-2, तो ये कितना हो रहा है, 2 तो यहां से कैंसिल हो जाएगा, n² हो जाएगा, ठीक है। सो आंसर याद रखो, द सम ऑफ फर्स्ट एन और नेचुरल नंबर इज n², ठीक है, n² हो जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? क्लियर एवरीवन? ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। अच्छा ये क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन में क्या पूछा है तुम्हें, क्वेश्चन में पूछा है कि द कोएफिशिएंट ऑफ, यू नीड टू फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x⁴ इन द प्रोडक्ट x-1 इंटू x-3 अप टू x-99। अच्छा ये एक ब्रैकेट दिया है मुझे, दैट इज x-1 इंटू x-3 अप टू x-99 दिया है, ठीक है। तो ये मुझे क्या है, ये दिया है, तो कोएफिशिएंट पूछा है, क्या पूछा है, द कोएफिशिएंट ऑफ x⁴ क्या हो जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, ओके। तो ये मुझे बताओ कि नंबर ऑफ ब्रैकेट्स कितना हो जाएंगे, नंबर ऑफ ब्रैकेट्स कैसे फाइंड आउट करोगे तुम, बताओ मुझे, नंबर ऑफ ब्रैकेट्स कितना हो जाएंगे, 1 3, देन क्या हो जाएगा, x-1 x-3 इंटू x-5 हो जाएगा 5, ये कहां तक जा रहा है ना, 99 तक जा रहा है। तो एन फाइंड आउट करना है ना, तो टी एन इसको मान लेते हैं मेरा टी एन, तो टी एन को अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो टी एन कितना हो जाएगा, दैट इज 1 प्लस n-1 इंटू 2d इज इक्वल टू 99। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, n-1 इज इक्वल टू 98/2, तो ये हो रहा है कितना ना, एन इज इक्वल टू कितना हो रहा है, 49 + 1 दैट इज 50, है ना। तो एन मेरे को मिला दैट इज 50, सो 50 ब्रैकेट्स है मेरे पास, ठीक है, 50 ब्रैकेट्स है। तो मुझे फाइंड आउट क्या करना है, मुझे फाइंड आउट करना है द कोएफिशिएंट ऑफ x⁴, राइट। अच्छा चलो ठीक है, तो फाइंड करो कैसे होगा। तो मुझे ये चीज पता है कि अगर मैं तुम्हें ये पूछूं कि x-1 की कंसीडर करो, x-1 इंटू x-2, तो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिल सकता है क्या, एक, एक तुम्हें कांस्टेंट मिलेगा कि नहीं, ठीक है।
x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इज इक्वल टू, यहां पे एक कांस्टेंट मिलेगा क्या तुम्हें? यस, आई विल गेट वन कांस्टेंट दैट इज माइनस वन इंटू माइनस टू दैट इज टू, प्लस और क्या मिलेगा? एक्स का कुछ कोफिशिएंट मिल रहा है, एक्स के टर्म पे कुछ मिल रहा है क्या? एक्स में कुछ टर्म्स मिल रहे हैं क्या? समझो अच्छे से। हाँ, एक्स कैसे मिलेगा ना, एक्स अगर टू के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये एक्स वन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा? माइनस एक्स माइनस टू एक्स, ये मिलेगा। और एक्स स्क्वायर मिल रहा है कि नहीं? हाँ, प्लस एक्स स्क्वायर मिल रहा है। ठीक है, और अच्छे से समझने के लिए हम अगर तीन ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करूं, एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री, यहां क्या मिल रहा है? यहां पे तुम्हें एक्स क्यूब मिलेगा कि नहीं ये बताओ मुझे। एक्स क्यूब कैसे मिलेगा ना, एक्स यहां को मल्टीप्लाई करो, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो तो एक्स क्यूब तो मिलेगा, बराबर मिलेगा। ठीक है, अगर एक्स क्यूब मिल रहा है, ओके, इफ यू आर गेटिंग एक्स क्यूब, अच्छा एक्स स्क्वायर मिलेगा क्या? हाँ, एक्स स्क्वायर कैसे बनेगा? एक्स स्क्वायर कैसे बनेगा ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और एक कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करो, फिर तो कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर हो जाएगा, सो माइनस थ्री, है ना। सिमिलरली इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और एक कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करो, दैट इज माइनस वन, है ना। फिर से और कैसे कर सकते हैं ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट ब्रैकेट की एक्स और थर्ड ब्रैकेट की एक्स को मल्टीप्लाई करो, यहां पे भी एक्स स्क्वायर मिलेगा और सेकंड ब्रैकेट की कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करो, दैट इज माइनस टू इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? अच्छा, एक्स की टर्म पे मिलेगा कि नहीं? एक्स की टर्म पे एक्स कैसे मिलेगा? एक्स इंटू क्या हो जाएगा? माइनस वन। एक्स कैसे मिलेगा तुम्हें? एक कैसे करोगे? टेक वन एक्स फ्रॉम वन ब्रैकेट, ठीक है, टेक वन एक्स फ्रॉम वन ब्रैकेट देन टेक टू कांस्टेंट। तो कैसे करोगे? देखो, एक्स में फर्स्ट ब्रैकेट से एक्स को ले लिया और दो कांस्टेंट को चूज किया तो मल्टीप्लाई होकर वही तो बनेगा। तो एक्स को कॉमन ले लिया तो ये कितना हो जाएगा? माइनस टू इंटू माइनस थ्री दैट इज माइनस टू इंटू माइनस थ्री दैट इज सिक्स, प्लस सेकंड ब्रैकेट से अगर उठाऊंगा तो माइनस वन इंटू माइनस थ्री कितना बनेगा? थ्री। थर्ड ब्रैकेट से उठाऊंगा तो माइनस वन इंटू माइनस वन, तो ये बनेगा, ऐसे ओपन होगा। दिस इज द एक्चुअल बाइनोमियल एक्सपेंशन, है कि नहीं? ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? क्लियर एवरीवन? अच्छा, तो एक्स एक्स क्यूब तो यहां पे बन रहा है। अच्छा, मेरे को क्या चाहिए? देखो, मेरे को दिया क्या है? मेरे को दिया है एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस फाइव अप टू एक्स माइनस 99 तक गिवन है। ये सारे ब्रैकेट जो हैं प्रोडक्ट में है, तो मुझे चाहिए एक्स टू द पावर 49 की कोएफिशिएंट चाहिए। तो एक्स टू द पावर 49, ये कितने ब्रैकेट्स हैं? नहीं, मेरे पास 50 ब्रैकेट्स प्रेजेंट है। मेरे पास कितने ब्रैकेट्स हैं ना? 50 ब्रैकेट्स हैं मेरे पास। टाइम कितना हो गया? ओके, मेरे पास 50 ब्रैकेट्स हैं। तो मेरे को चाहिए क्या? मेरे को चाहिए एक्स टू द पावर 49, दैट मींस आई विल चूज एक्स फ्रॉम 49 ब्रैकेट्स, आई विल मल्टीप्लाई एक्स हियर विथ एक्स। ऐसे ही हम कैसे ना 49 ब्रैकेट्स की एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, समझ में आ रहा है? और एक ब्रैकेट को ब्रैकेट से क्या कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, यस और नो? जैसे कि यहाँ पे एक्स में एक्स के साथ क्या कर रहे थे ना, कैसे कर रहे थे ना, एक्स को एक ब्रैकेट से ले रहे थे, दोनों एक्स को मल्टीप्लाई कर रहे, दोनों कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर रहे थे। अगर एक्स स्क्वायर चाहिए तो मैं दोनों ब्रैकेट से दो एक्स को मल्टीप्लाई किया और एक कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई किया, और अगर एक्स क्यूब चाहिए तो तीनों को मैं मल्टीप्लाई कर दिया। तो सिमिलरली यहाँ पे 50 ब्रैकेट्स है मेरे पास, 50 ब्रैकेट है, और 50 ब्रैकेट में से मुझे चाहिए क्या ना, एक्स टू द पावर 49 चाहिए, तो 49 एक्स चाहिए मुझे। तो सारे ब्रैकेट्स में एक्स को चूज करूंगा और एक ब्रैकेट से कांस्टेंट चूज करूंगा। तो ऐसे अगर चूज करते जाऊंगा तो एक्स टू द पावर 49 के कोएफिशिएंट क्या आ जाएंगे ना, माइनस वन एक तो आएगा, माइनस वन माइनस थ्री माइनस फाइव, अप टू कहां तक जाएगा ना, माइनस 99 तक जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? है ना। तो इसका सम हम आराम से निकाल सकते हैं। तो एक्स टू द पावर 49 माइनस को अगर कॉमन ले तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 5 अप टू 99। तो सम निकाल दो, इसका सम निकालेंगे तो ये क्या, सम ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स अप टू nth टर्म्स अप टू 99, 99, ठीक है, अप टू 99। कितने टर्म्स है ना, 50 टर्म्स है। सो एक्स टू द पावर 49 इंटू क्या हो जाएगा ना, माइनस
एन स्क्वायर हो जाएगा ना, एन स्क्वायर, तो एन कितना है ना 50, तो 50 का स्क्वायर, दिस इज योर आंसर। क्लियर? तो करेक्ट आंसर इज दिस, 50 माइनस 50 का स्क्वायर, माइनस ऑफ 50 स्क्वायर, माइनस ऑफ 50 स्क्वायर, दैट इज कितना हो जाएगा ये, माइनस 2500 हो जाएगा। द करेक्ट आंसर इज माइनस 2500। क्लियर एवरीवन? तो x टू द पावर 49 की जो कोएफिशिएंट है वो कितना मिला ना, माइनस 2500। इज इट क्लियर टू ऑल? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स इफ इट इज क्लियर टू ऑल। कृति, अवे, इज इट क्लियर? यस और नो? एनी डाउट? इसमें कोई डाउट है क्या? समझ में आया कि नहीं? कोई डाउट है इसमें? अच्छा क्वेश्चन था। कोई डाउट है तो पूछ लो। यस, ओके। हाँ, टाइम है हमारे पास अभी भी, चलो लेट्स मूव। अच्छा, ये चीज है कि देखो, ये क्या है ना, ये दिया है एक रिजल्ट है, टी एन इज इक्वल टू एस एन माइनस वन। तो एस एन क्या होता है देखो ना, एस एन क्या है, एस एन क्या होता है ना, टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री अप टू टी एन। तो एस एन माइनस वन क्या हो जाएगा ना, एस एन माइनस वन कितना हो जाएगा, टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री अप टू कहां तक जाएगा ये ना, टी एन माइनस वन तक जाएगा। तो इससे पहले वाला टर्म क्या हो जाएगा ना, टी एन माइनस टू, इसका पहला वाला टर्म क्या हो जाएगा, टी एन माइनस वन। समझ में आ रहा है? इन दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो एस एन माइनस वन क्या हो जाएगा, क्या मिलेगा तुम्हें, देखो ये तो ये सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, ये सारे टर्म्स कैंसिल होने के बाद मेरे मेरे को मिलेगा क्या, यहाँ तो कैंसिल हो जाएंगे, तो टी एन मिल रहा है। तो याद रखो एस एन माइनस वन जो होता है दैट इज टी एन, एस एन माइनस वन जो होता है दैट इज योर टी एन। ओके, सो लेट्स सॉल्व वन क्वेश्चन। क्वेश्चन पे क्या दिया है देखो, इफ द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज गिवन बाय, सो एस एन मुझे दिया है दैट इज 3n प्लस 2n स्क्वायर, राइट? देन द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अच्छा, एपी का मुझे सम दिया है एस एन दैट इज 3n प्लस 2n स्क्वायर एंड कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना चाहिए। तो एक तो शॉर्टकट है तुम्हारे लिए, आराम से उसको सॉल्व कर सकते हो। एन इज इक्वल टू वन पुट कर लो। अगर हम एन इज इक्वल टू वन पुट कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, एस एन क्या हो जाएगा, एस एन क्या हो जाएगा, सॉरी, शॉर्टकट मेथड क्या है यूज करेंगे हम यहाँ पे, एन इज इक्वल टू वन नहीं। देखो यहाँ पे क्या हम पढ़े थे अभी, एस एन माइनस वन इज इक्वल टू टी एन। तो मैं क्या करूँ ना, एस टू फाइंड आउट करो। एस टू कितना हो जाएगा, 6 प्लस 2 इंटू टू का स्क्वायर दैट इज 8, 14, ठीक है। और एस वन फाइंड आउट करो दैट इज 3 प्लस 2, 5। अच्छा, एस टू माइनस एस वन करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, अच्छा एस एन माइनस वन कर लेते थे तो टी एन मिल रहा था, मतलब ये एन ये। तो एस टू माइनस एस एन करेंगे तो क्या मिलेगा, एस टू माइनस एस वन करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, टी टू मिलेगा। तो टी टू कितना बन रहा है देखो, टी टू विल बी 14 माइनस 5 दैट इज 9। सो टी टू मुझे मिला 9। तो टी वन क्या हो जाएगा, टी वन क्या था दैट इज एस वन, तो टी वन क्या है 5। सो तो तुम्हारा जो आंसर है, आंसर क्या पूछा है ना, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा ना, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म दैट इज 14, सॉरी 9 माइनस 5 दैट इज 4, दैट इज 4। 4 is the correct answer everyone. Clear everyone? 4 is the correct answer. Yes, got it? Clear? Sure. So let's move to the next thing. ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क है। Let's take this question as a homework question. Take a screenshot of this question or you can note it down also. और इसको भी जनरल मेथड में
ट्राई करके आना। जनरलाइज हम यहाँ पे डायरेक्ट S2 माइनस S1 करके कर दिए, लेकिन इसको हम जनरलाइज मेथड भी कर सकते हैं। SN को फाइंड आउट करो, SN माइनस 1 को फाइंड आउट करो, फिर TN फाइंड आउट करो, फिर TN माइनस TN माइनस कर दो, तो मिल जाएगा तुम्हें कॉमन डिफरेंस। वो भी कर सकते हो, ठीक है। ओके, सो प्रॉपर्टीज ऑफ एपी में क्या बोल रहा है कि द कॉमन डिफरेंस कैन बी जीरो, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव। मतलब कॉमन डिफरेंस जो होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं। चलो सेकंड प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है कि ए बी सी आर इन एपी। अगर ये तीनों एपी में है तो बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी होगा। तो इन दोनों को अगर मैं बी को दो एक साइड में ले जाऊंगा तो टू बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस सी हो जाएगा। तो बी कितना हो जाएगा, यही तो पूछा है। तो बी इज इक्वल टू ए प्लस सी बाई टू, ये हो गया, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड, थर्ड वन, कंसिडरिंग द नंबर इन एपीज। अच्छा, नंबर को हम कंसिडर कैसे करेंगे, एपी में अगर 3 नंबर दिया है तुम्हें, तो एक चीज तो तुम याद रखो, अगर तुम्हें कोई एपी में 3 नंबर एज्यूम करने के लिए दिया है तो कैसे, 3 टर्म्स ऑफ एन एपी को तुम्हें एज्यूम करना है, तो कैसे एज्यूम करोगे ना, मिडिल टर्म को ए चूज करो। व्हेन यू आर चूजिंग ऑड नंबर ऑफ टर्म्स, है ना, मिडिल टर्म को ए चूज करो, तो नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, ए प्लस डी हो जाएगा, एंड प्रीवियस टर्म ए माइनस डी हो जाएगा। अगर 4 टर्म तुम चूज कर रहे हो, 4 टर्म्स चूज कर रहे हो, तो 2 मिडिल टर्म मिलेगा यहाँ पे तुम्हें। तो एक तो है ए प्लस डी, ए माइनस डी चूज करो, ये दोनों मिडिल टर्म है, ए माइनस डी, ए प्लस डी। तो इन दोनों के डिफरेंस क्या है, 2D। सो ये हो जाएगा ए प्लस 2D, सॉरी ए प्लस 3D हो जाएगा ना, ए प्लस 3D, और ये हो जाएगा ए माइनस 3D। याद रखो पूरा, ये चीज को दिमाग में रख लो, ठीक है। एंड अगर 5 टर्म तुम्हें एज्यूम करना है तो उस केस में क्या करोगे ना, ए चूज करो, फिर ए प्लस डी चूज करो, फिर ए माइनस डी चूज करो, ठीक है। और ये उसके बाद क्या हो जाएगा ना, ए प्लस 2D, और ये हो जाएगा ए माइनस 2D। तो ऐसे चूज करना है तुम्हें, ठीक है, इस टाइप से तुम्हें चूज करना है। क्लियर एवरीवन, ओके, ठीक है। और भी 2-3 प्रॉपर्टी है, उसको हम आगे जाके, ये क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, कल हम डिस्कस करेंगे, या कल तो क्लास नहीं है, परसों, ठीक है। ऑन थर्सडे विल ट्राई टू complete some 1 or 2 properties, then we'll move through the geometric progression. Okay, so that's all for today's class. Thank you all, thanks for your patience, thanks for your time, thank you, bye bye, take care everyone. ठीक है, चल बाय बाय, you can leave, welcome बेटा।